हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, आई अजय कुमार मिश्रा वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अर्थ क्लासेस. माय डियर फ्रेंड्स, टुडे in this class I am going to teach you use of has, have and had as a helping verb in this spoken classes. मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले we have already studied about the conjunction word. How will you join the two sentences using the WH family conjunction word? और वो WH family conjunction word क्या था? Who था, which था, where था, whatever था, whom था, whose था. अब उसको next structure we will learn right now, and after that we will try to combine with the help of conjunction word. So please be concentrated, all of you, and just ready to learn use of has, have and had as a helping verb. Earlier, my dear friends, I have already told you कि has, have, had, it is used as a main verb. It means to keep. Has and have are used as a main verb for expressing about the रखना के सेंस के लिए. In present and had, it means to keep and it expresses about the past. Today we will learn to make a present perfect tense or past perfect tense using helping verb has, have and had, and such tenses expressed about the work has been already finished in present or past. So my dear friends, you will learn it. Use of has, have and her. It means verb to be, it has been already finished. Verb to be, verb to do, and now we are going to learn the verb to have. Verb to have, और verb to have के केस में आता है has, have और had. हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव और हैड का यूज करने जा रहा हूं आज. और ये कैसे स्ट्रक्चर किस सेंस को बनाता है वी विल लर्न राइट नाउ. Has and have are used to express those with sentences which has been, those with sentences, या has and have are used to express those with sentences to show, express those with sentences which
has been finished, which has been which sentences which has been expressed, those which sentences which has been finished, sentences which has been expressed about the work has been already finished in present time. Work, which work has been finished in present. वे सभी काम या वर्क जो प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है, समाप्त हो चुका है, इंडेड हो चुका है, उस तरह के सेंटेंस को बनाने के में हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3। मैंने आपको सिलेबस खत्म कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी finished your I have already finished your syllabus। मैं आपका सिलेबस समाप्त कर चुका हूं। इट मीन्स न ये काम इनडिफिनिट में है, अनिश्चित में है, और न ये काम चल रहा है। सिलेबस जो आपका था वो मैं खत्म कर चुका हूं एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग क्या बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलता है कि यदि कोई काम प्रेजेंट टाइम में फिनिश्ड हो चुका है तो उसमें हम लोग हैज प्लस V3 का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हैज प्लस V3। V3 इट मीन्स मेन, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, वी विल लर्न द स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप, एंड आई हैव ऑलरेडी made you learned how will you form 6 type of sentences. If you think single sentence, affirmative, and now you have to translate into the different form like negative sentence, affirmative question, negative question, WH family affirmative question and WH family negative questions। तो इस तरह से 6 फॉर्म का हम लोग फॉर्मेशंस करते हैं सेंटेंसेस का। और नाउ वी गो थ्रू द प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते हैं सो दैट कि such types of structures it can be stored in our tongue, and when we start common talk, now it slips from our tongue automatically। And now my dear friends, I have taught you some conjunctions, word WH family conjunction you will try to add in your tongue also। You will try to join such conjunction words according to the sense so that you can make a compound or complex sentences। now आइए हम लोग इसका स्टार्टिंग से each और every steps को हर को देखेंगे स्ट्रक्चर। now come to the point।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये हैज, हैव और हैड, तो हैड का यूज कर करते हैं। तो हैड, इट इज यूज्ड फॉर दोज वर्क which has been finished in past। वह काम जो पास्ट टाइम में समाप्त हो चुका हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं। हैज एंड हैव, फिनिश्ड वर्क, फॉर फिनिश्ड वर्क इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टाइम में काम समाप्त हो चुका हो उसके लिए हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। और पास्ट में अगर वो काम समाप्त हो चुका हो तो उसके लिए हम लोग हैड का यूज करते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सम वर्ड्स। देखिए, ये आपका प्रेजेंट है। नाउ दिस इज द पास्ट। आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, इट के साथ हैज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट है आपका। नाउ दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हैव का यूज करना है, यू के साथ हैव का, दे के साथ हैव का, ही के साथ, सी के साथ हैड, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, इट के साथ, और नेम जो भी हो। नेम के साथ क्या यूज करना है हम लोग को? हैज का यूज करना है। किसमें? वो प्रेजेंट वाले में। पास्ट वाले में बाय डियर स्टूडेंट्स, आई हैड, यू हैड, दे हैड, वी हैड, सी हैड, he had, name had, plural had, singular had. It means in all cases either singular or a plural or a name of cities or anything else, we are allowed to use the helping verb had. और ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से अब हमें ये पता चल चुका है कि हैव और हैज का यूज कहाँ करेंगे और हैड का यूज कहाँ करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैड का यूज पास्ट टाइम में जो वर्क ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका उसके लिए, और हैज एंड हैव जो प्रेजेंट टाइम में फिनिश्ड हो गया है उसके लिए यूज करते हैं। तो नाउ अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे बेटा कि ये स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे। तो आप यू आर यूजिंग एवरीडे। डू डज पे आपका कमांड हो चुका है, इज एम आर पे कमांड हो चुका है, हैज हैव हैड पे कमांड करना है। अब ये टेंस के अकॉर्डिंग 2 फेजेस हमने सीखा है। एक एज ए हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के फॉर्म में, और दूसरा वो मेन वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में।
और जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो ये टेंसेस को बताता है, डिफरेंट टाइम्स को बताता है अकॉर्डिंग टू द सेंस। नाउ अब देखिए, एक आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त का दिन है। सिंपल सेंटेंस बना, दिस इज द डे ऑफ 15 अगस्त। लोग झंडा फहराते हैं, पीपुल होइस्ट द फ्लैग, फहराते हैं। मैं हर 15 अगस्त को झंडे दिवस पर स्कूल में भाग लेता हूं। आई पार्टिसिपेट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स इन द स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सारे स्ट्रक्चर को बताया हूं। नाउ इट इज द राइट टाइम टू यूज इट इन कॉमन स्पोकन इंग्लिश एंड कंबाइंड इट। और क्या है, 15 अगस्त के दिन हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक भाषण देते। सिंपल बनाइए, सिंपल सेंटेंस को आप बनाओ, जो स्ट्रक्चर आप सीख लिया है उसको यूज करो। ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त आवर हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स और होइस्ट द फ्लैग एंड डिलीवर द स्पीच। भाषण देते। बच्चे गाना गाते हैं, चिल्ड्रेन सिंग ए सॉन्ग। लड़कियां डांस प्रोग्राम में भाग लेती हैं, गर्ल्स पार्टिसिपेट, जो गर्ल्स है भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट इन डांस प्रोग्राम। बहुत एक खुशनुमा माहौल होता है, इट इज अ वेरी गुड इन्वायरमेंट। सब सिंपल लगा रहा हूं, इट इज अ वेरी गुड इन्वायरमेंट, जहां हम लोग एक साथ झंडा उत्सव मनाते हैं। अभी जहां किसके लिए हुआ, उस स्कूल के लिए। तो कंजंक्शन वर्ड कौन सा लगाया मेरे प्यारे बच्चों, वेयर लगा। वेयर वी इंजॉय, दिस इज द प्लेस वेयर वी इंजॉय। और ये प्लेस किसके लिए होगा, तो वेयर वी इंजॉय मतलब उसी स्कूल के लिए आपने यूज किया। ठीक है, इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं, जो हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक उन्हें सम्मान देते। तो जो किसके लिए आया, तो फिर प्रिंसिपल के लिए आया। पर्सन हु का यूज करेंगे, आई रिस्पेक्ट, आई गिव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट हु ऑर्गेनाइज, who has given me chance, who has given me a platform to enjoy. It means head of organization. तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, कंजंक्शन को यूज करना है, स्ट्रक्चर को यूज करना है, और यूज करके आपको अपने स्पोकन को बोलना है। लॉकडाउन सेशन में मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर को सीखें, और इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ वॉल, जस्ट you have to express your view. Now come to the point, how will you make a structure using has and have, and how will you express the present and the past perfect sentences? Come to the point. तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्ट्रक्चर सीखते हैं इसका। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फर्स्ट जो होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सिंपली क्या करना है हम लोग, अभी आपको मैंने दिखाया कि सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट के साथ
कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। आप इसे लिख लिए हैं, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर रहे हैं या पास्ट परफेक्ट को यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके सेंस के अकॉर्डिंग। एंड नाउ यू हैव टू यूज द स्ट्रक्चर। मैं कल 2 विद्यार्थियों को अपने घर पे बुलाया था। मैं कल 2 विद्यार्थियों को अपने घर पे बुला चुका था। ठीक है, मेरे से पूछा गया कि क्या आपने 15 अगस्त की तैयारी के लिए कुछ बच्चों को अपने घर पे बुलाए थे। आई हैव रिप्लाइड, मैंने उन्हें जवाब दिया हूँ, मैंने जवाब देने का काम खत्म हो चुका है, तो सो आई हैव रिप्लाइड। आई हैव कॉल्ड, आई हैड कॉल्ड 2 स्टूडेंट्स यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल। तो एक्सप्रेशन शो करता है आई हैड कॉल्ड 2 स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी कॉल्ड 2 स्टूडेंट्स यस्टरडे एंड जस्ट आई हैड कन्विंस्ड देम। हाउ विल यू पार्टिसिपेट ऑन 15th अगस्त। तो यहाँ पर बच्चे हैड लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ये डिपेंड करे आपके सेंस पे। तो जैसे है कि मैंने आपको कहानी सुना चुका हूं, आई हैव नरेटेड यू अ स्टोरी, आई हैव नरेटेड यू ए स्टोरी, मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब ये सही समय है कि मैं आपका टेस्ट कंडक्ट कर सकूँ। तो सिंपल सा सेंटेंस है मेरे पास बच्चों, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द सिलेबस, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द चैप्टर, नाउ इट इज द राइट टाइम टू कंडक्ट द टेस्ट। वेरी सिंपल। अब स्ट्रक्चर सीख गए हैं, आप उसको यूटिलाइज करें प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में, सो दैट कि आप उसका ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ये भी कंजंक्शन वर्ड है, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए कि, या ताकि आप जवाब दे सकें। आई हैव ऑलरेडी टाउट यू सो दैट यू कैन रिप्लाई, सो दैट यू कैन रिप्लाई, सो दैट यू कैन रिप्लाई, इसलिए कि या ताकि आप जवाब दे सके। नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर, आप इसको हेड का एक बताता हूं। हेड में क्या है बेटे मेरे, तो हेड, मैं कल 2 बच्चों को घर भेज चुका था। चूंकि कोरोना का इतनी ज्यादा भयानक रूप से स्प्रेड हो रही थी, यह देखते हुए मैं 2 बच्चों को अपने घर भेज चुका था। तो हो जाएगा आई हैड सेंट 2 चिल्ड्रंस, या आप इसको बनेंगे मैं 2 बच्चों को भेज चुका था। अगर करना है मैं 2 बच्चों को घर भेज चुका था, तो आई हैड सेंट टू हाउस, आई सेंट होम 2 चिल्ड्रंस, आई सेंट होम 2 चिल्ड्रंस, 2 बच्चों को मैंने घर भेज चुका था। नाउ सेकेंड, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो वो सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हुआ हो और वो सेंटेंस काम को फिनिश्ड हो चुका हो बताता हो, मतलब समाप्त हो चुकी है, या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में। तो उस तरह के वाक्य को हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं। किसमें रखते हैं, परफेक्ट टेंस। और वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो हैड प्लस V3 होगा, और अगर पास्ट परफेक्ट हो तो हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। नाउ एक सेंटेंस देखते हैं, मैं कोरोना के चलते पिछले शनिवार को
किसी भी पेरेंट्स को नहीं बुला पाया था, नहीं बुला पाया था मतलब काम बुलाने का खत्म हो चुका, वो भी पास्ट में हुआ। तब उसको यहाँ पर आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या आ ए ई, आ ए ई, या ये ई का सेंस होगा। अगर अब इसके साथ है लगा है तो प्रेजेंट, अगर था लगा है तो पास्ट, और नहीं भी लगा है तो भी पास्ट हो जाएगा। जैसे पिछले शनिवार को मैं पेरेंट्स को नहीं बुला पाया, मैं अपने जन्मदिन पे कार्ड नहीं छपवाया या छपवा चुका था। तो ये सेंटेंस हो गया कि जन्मदिन मेरी बीत गई और उसमें कार्ड नहीं छपवाया। क्यों नहीं छपवाया? तो कोरोना काल चल रहा था। तो दिस इज द पास्ट। नाउ आई हैड नॉट called my relatives on my birthday, on my बर्थडे। मैं अपने जन्मदिन पर अपने परिवारों को नहीं बुला पाया था, मैं अपने जन्मदिन पर अपने परिवारों को नहीं बुला पाया था। तो ये पास्ट हो गया, मेरी जन्मदिन बीत चुकी है। तो दिस इज द पास्ट निगेटिव। दूसरा, बारिश के कारण मैं घर से नहीं गया हूं। किसी ने बुलाया कि आपको 4 बजे आना है, 4 बजे के बाद मेरे पास कॉल आती है, तो मैंने बोला कि बारिश के कारण मैं कहीं गया नहीं हूं। तो गया नहीं हूं अगर है तो ये प्रेजेंट है। आपने किताब को नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ने का काम आपने खत्म नहीं किया। तो यू हैव या दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क। वे लोग अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है। मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, अभी घंटी नहीं बजी है। नो बेल हैज नॉट रिंग रैंग रंग। बेल हैज नॉट रैंग राइट नाउ, अभी घंटी नहीं बज चुकी है। ठीक है, अभी सोर्स कभी किताब खत्म नहीं हुई है। नाउ इट हैज नॉट बीन फिनिश्ड, नाउ इट हैज नॉट फिनिश्ड, ये अभी समाप्त नहीं हुई है। तो इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस व्हेन इट कम्स इन योर माइंड, जस्ट यू हैव टू यूज द स्ट्रक्चर हैज एंड हैव। तो आपको सोचना बेटा कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे लगाना, बिकॉज यू आर लर्निंग एवरी डे स्पोकन इंग्लिश। नाउ 12th episode is going on, and now there are so many structures you have learned. Now it is the right time to use in your spoken. Third है affirmative question। affirmative question, affirmative question किसको बोलेंगे? तो वह सेंटेंस जो क्वेश्चंस है, यस क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें नहीं लगा हुआ है। आरंभ में क्या लगता है, स्टार्टिंग में क्या लगा रहेगा। आरंभ में क्या लगा रहता है, क्या लगा रहता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, और वर्क फिनिश दिखाता है, शो करता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे देखिए, क्या वह घर जा चुका है? क्वेश्चन हो गया, क्या वह घर जा चुका है? तो होगा क्या, वह है, ही के साथ क्या लगा, हैज। इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा आपका हैज
हैव या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिखा, इसका स्ट्रक्चर आप लिख लें। सब्जेक्ट प्लस हैज हैड हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द निगेटिव, नाउ दिस इज द क्वेश्चंस। अब बनाइए, क्या हुआ, घर जा चुका है तो हैज ही गॉन होम, हैज ही गॉन होम। क्या तुम होमवर्क खत्म कर लिया जी? हैं? अभी तक होमवर्क बनाया नहीं है, अभी तक होमवर्क बनाया नहीं है, ये निगेटिव हो गया। क्या अभी तक तुम अपना होमवर्क खत्म नहीं किए हो? दिस इज द क्वेश्चन, नाउ यू कैन यूज इट। हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क राइट नाउ? ओ माय गॉड, दिस इज टाइम 4 o'clock. Now we have to go to the playground to play and now you have not finished your homework. और अभी तक तुम होमवर्क खत्म नहीं किया है। तो बेटे मेरे प्यारे बच्चों, आपको जितना स्ट्रक्चर मैं बताते जा रहा हूं, यू हैव टू यूटिलाइज। नाउ इट्स माय गारंटी, डेफिनेटली यू विल बी द बेस्ट स्पीकर आफ्टर फिनिशिंग द 45 days क्लासेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। क्या हुआ, अपना क्या भी लोग मुझे 26 जनवरी पर निमंत्रित कर चुके हैं। हैव दे इनवाइटेड मी ऑन 15th अगस्त? क्या वे लोग मुझे निमंत्रित किए हैं 15th अगस्त पर? नहीं किया। दे हैव नॉट इनवाइटेड मी ऑन 15th अगस्त, सो व्हाई विल आई गो देयर? इसलिए मैं वहां क्यों जाऊंगा? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका होता है, वो निगेटिव क्वेश्चन होता है। तो वो आरंभ में क्या लगा रहेगा और नहीं बीच में लगा रहता है, देखेंगे आप। Now, negative questions. या आप इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो जो वाक्य प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में वर्क फिनिश्ड होते हुए शो करे और स्टार्टिंग में क्या और बीच में नहीं लगा रहा हो। आरंभ में क्या होगा, आरंभ में क्या होगा और वाक्य के बीच में, और वाक्य के बीच में क्या लगा रहेगा, नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली। इस सेंटेंस को बोलते हैं निगेटिव क्वेश्चंस। और इसका स्ट्रक्चर होगा मेरे प्यारे बच्चों, हैज, हैव, had plus subject plus not plus V3 plus object plus sign of interrogation। क्या वह मेरे पार्टी में नहीं आ चुका था? आया था, वो झूठ बोल रहा है।
नाउ वेरी सिंपल, क्या वो मेरे पार्टी में नहीं आया था? आया था है, वो आया था, वो झूठ बोल रहा है आपसे। वेरी सिंपल, आप बोलते हो कॉमन में, अभी इसको बनाओगे कैसे बेटा? हाउ विल ट्रांसलेट इन योर माइंड वेरी फास्ट? तो क्या हुआ, आप क्या हुआ मेरे पार्टी में नहीं आया था, तो क्या हुआ? हैड ही नोट कम इन माई पार्टी? Had he not come in my party? Had he not come in my party? He had come. वह आया था, वह आ चुका था। He was speaking a lie. वह झूठ बोल रहा था, वह झूठ बोल रहा था। वेरी सिंपल। तो आपको इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर मैंने दिया है आप उसको यूटिलाइज करना है मेरे प्यारे बच्चों। बेहिचक, when you get a spare time, utilize it, the structure. Now you definitely you are eligible to speak differently. Had he not come in my party? Has he not called me for playing a ball? Has he not called me? क्या हुआ मुझे खेलने के लिए नहीं बुला चुका था? बोलते हैं क्या हुआ मुझे खेलने के लिए नहीं बुलाया था? बुलाया था, ठीक है। तो has he not called me for playing a ball? क्या हम लोग आपको पढ़ाने के लिए नहीं बुलाए थे? तो यहाँ क्या बुलाया नहीं, क्या हम आपको बुला, ये है कैसे समझ आएगा? क्या मैंने आपको क्लास लेने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं बुलाया हूं? आप आते ही नहीं हो, आप आए ही नहीं हो। तो हैव आई नॉट कॉल्ड यू फॉर अटेंडिंग द क्लास? यू आर नॉट कमिंग, तुम नहीं आ रहे हो। तो हु इज फॉल्टी? सिंपल सेंटेंस, कौन दोषी है? यू एंड आई, तुम या मैं। So this is the simple sentence or tenses which combines to each other and form a sense, and you have a different structures, you have learnt a different structures, you have learnt a different structure, तुम बहुत सारे स्ट्रक्चर सीख चुके हो। now अब आप उसका यूज कर सकते हैं। now you can use it। WH family question, वह सेंटेंस जिसमें WH फैमिली वर्ड लगा है। WH फैमिली वर्ड में क्या होता है? विच होता है, व्हाट होता है, वेयर होता है, हुज होता है, whom होता है, when होता है। दीज आर द WH फैमिली वर्ड्स। और इस WH फैमिली वर्ड्स को क्वेश्चंस बनाते हैं। WH फैमिली अफर्मेटिव एंड WH फैमिली नेगेटिव क्वेश्चंस। तो WH फैमिली अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली वर्ड्स प्लस स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव क्वेश्चन। अफर्मेटिव क्वेश्चंस का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है बस उसी में WH फैमिली वर्ड्स को आप लगा दें। नाउ इट विल बी फॉर्म द WH फैमिली क्वेश्चन। मैं आपको अपने घर पे क्यों बुलाया हूं? क्यों बुलाया हूं पता है आपको? आपने कल गाली दिया था, यानी गाली देने का काम खत्म हो चुका था। मैं आपको अपने घर पे क्यों बुलाया हूं? आप भगवान थोड़े ही हो। कल आपने मुझे बाजार में गाली दिया था और उसका प्रमाण मैं बताने जा रहा हूं। सिंपल, सो सिंपल। कैसे? Why have I called you at my home? Why have I called you at my home?
Are you God? No. Actually, you had abused me in the market yesterday. आपने कल मुझे मार्केट में गाली दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में डब्ल्यू फैमिली क्या है कि हैव आई कॉल्ड यू, हैव आई कॉल्ड यू एट माई होम, वाई, सिर्फ इस वर्ड को लगा देना है। वाई हैव आई कॉल्ड यू, मैं आपको क्यों बुलाया हूं अपने घर पे, मैं आपको अपने घर पे क्यों बुलाया हूं। और ये डब्ल्यू एच फाइनली निगेटिव होगा तो सिंपली निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव क्वेश्चन और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। सिंपली लगाएंगे। मैंने उन लोगों को घर नहीं भेजा हूं, मैं उन लोगों को घर क्यों नहीं भेजा हूं, आप क्यों नहीं अपना काम खत्म कर चुके हैं अभी तक, या वह अपना घर अभी तक क्यों नहीं बना पाया था। पता है उसके पास पैसे नहीं थे। वेरी सिंपल। व्हाई हैड ही नॉट फिनिश्ड हिज होम, why had he not finished the construction work, why had he not finished his construction work, वो कंस्ट्रक्शन वर्क को क्यों नहीं खत्म कर चुका था। आप अपनी पढ़ाई को समाप्त क्यों नहीं कर लिए थे। आपको पता था कि एग्जामिनेशन वाज गोइंग ऑन, एग्जामिनेशन is at your hand, it's very near। तो मेरे प्यारे बच्चों, why when had he gone to market, when had he नोट लगा दीजिए, नोट gone to market, वह बाजार कब नहीं गया था, रोज बाजार गया था, उसको कोरोना हो चुका था, उसे कोरोना हो चुका था। He had suffered from corona, he had suffered from corona, उसे कोरोना क्यों हो गया, उसे कोरोना हो गया, उसे कोरोना क्यों हो गया है। Why has he suffered from corona, तो वह अपने दोस्तों के साथ मिल चुका था, पार्टी मना चुका था, इसलिए हुआ। He had involved in a party with his friend, वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना चुका था या पार्टी में शामिल हो चुका था। कब हुआ था, वह अपने दोस्तों के पार्टी में शामिल कब नहीं हुआ था। When had he not involved in his party with his friends। Now my dear friends, these are the structure of present perfect and past perfect, and using the helping verb has, have and had, you can format a different types of a structure, and now one sentences will provide you idea to form a 6 types of sentences. Now you have to made at your home, and after writing the copy, just you have to flow it, you have to use it, you have to speak loudly so that you can command over the structure and you can utilize in the common spoken English. Thank you for today's class, and I think my dear students, you are utilizing it continuously, and definitely you will learn 100% these structures and you will utilize in the common spoken English. Thank you for today.